اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم. یہ آیت نمبر 37 ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، چند الفاظ سیکھیے، چند کلمے سیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے. وہ کون سے الفاظ آپ نے سیکھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آپ نے کلمے سیکھے تھے اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر القاء فرمائے تھے، اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر جو الفاظ ڈالے تھے وہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ فرمائے، لنکونن من الخاسرین، تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ الفاظ، خوبصورت الفاظ جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے عاجزی کا اظہار کیا، اپنی اس خطا کا اعتراف کیا اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگی، تو اللہ پاک نے ان پر مہربانی فرمائی اور ان کو بخش دی. تو لہٰذا یہ وہ الفاظ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے سکھائے گئے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں. بعض لوگوں نے نقل کیے کہ جی جہاں فلاں چیز کے ذریعے فلاں چیز کے ذریعے جو ہے وہ، جیسا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں ایک دفعہ آیا، انہوں نے کہا تھا کہ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بک ہمارے سامنے ہے اس کے اندر غالباً یہ لکھا ہوا ہے. جی ہاں، اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے مولا میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے. ٹھیک ہے، حق تعالیٰ نے ان کی بخشش کی اور وہی بھیجی کہ محمد کہاں سے جانا تو نے، یعنی تمہیں کیسے پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر آئیں گے. تو انہوں نے تمام ماجرا عرض کیا، حکم پہنچا کہ اے آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پیغمبروں سے پچھلا پیغمبر ہے، اولاد تیری میں سے، اور اگر وہ نہ ہوتا تجھ کو نہ پیدا کرتا. یہ ایک الفاظ ہے. تو اس روایت کے بارے میں لوگوں نے بہت کلام کیا ہے، بہت بات کی ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ عجمی الفاظ ہیں، عربی الفاظ نہیں ہیں. لیکن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اس کے بارے میں تمام حضرات متفق ہیں، لکھتے ہیں کہ یہی وہ دعا تھی، یہی وہ الفاظ تھے جن کے کہنے کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا. تو لہٰذا ہمیں بھی یہی دعا یاد رکھنی چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب آدم کو یہ ہم نے کلمے سکھا دیے اور انہوں نے یہ کلمے پڑھے، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. فتاب علیہ، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایسے خطا کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، انسان، میں کہہ چکا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. چلیں ایک جملہ اور بھی بڑھا دیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. محفوظ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے. اور پیغمبر گناہوں سے بالکل ہی محفوظ ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بڑے بڑے لوگوں سے گناہ سرزد ہو جاتی ہیں. لیکن گناہ گار وہی اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے جو گناہ کرنے کے بعد دو آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب معافی مانگی، اب یہ زمین پر آنے اترنے اور ان کے معافی قبول ہونے کا جو عرصہ ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں نے لکھا کہ 300 سال گزر گئے، کسی نے لکھا جناب اتنے روز گزر گئے. حدیث کے اندر غالباً، میں اس لیے کہہ رہا ہوں غالباً کے لفظ، میں نے پورا اس کے بارے میں کوئی زیادہ تحقیق نہیں کی، باقی چیزیں الحمدللہ میں تحقیق سے کہتا ہوں، اس میں کوئی اپنی طرف سے تلاوت کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اس میں نہیں لکھا ہوا کہ اتنی عرصے کے بعد جو ان کی معافی ہوئی. اور کہاں اتارا گیا؟ بعض کہتے ہیں میدان عرفات میں اتارا گیا، بعض کہتے ہیں جدہ میں اتارا گیا، بعض کہتے ہیں ہندوستان میں اتارا گیا، بعض کہتے ہیں سری لنکا میں سرادیپ میں اتارا گیا. یہ مختلف اقوال ہیں. بہرحال اللہ پاک نے ان کو زمین پر اتار دیا اور زمین پر بھیج دیا اور فتح والے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. انہ هو التواب الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ تو ہے ہی تواب اور رحیم. تواب کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحیم کے معنی ہے رحم فرمانے والا. یعنی اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں سزا دینے والا ہوں، میں پکڑنے والا ہوں. کفار کو کہا ہے اللہ پاک نے کہ میں پکڑنے والا ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں. اگر استغفار کرو گے
तकब्बुर करोगे तो फिर मैं पकड़ूंगा, कुफ्र करोगे तो फिर कहर भी होगा, गजब भी होगा। लेकिन जहां मोमिनों का जिक्र आया है वहां अल्लाह पाक ने अपनी पहचान तव्वाब और रहीम के नाम से कराई। फरमाया मैं तौबा भी कबूल करने वाला हूँ और रहम भी फरमाने वाला हूँ। देखिए जो तव्वाब का लफ्ज़ है ना, ये इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है और अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुरान पाक में आता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तव्वाबीन, तव्वाब तव्वाब की जमा है, अल्लाह तव्वाब को तौबा करने वालों को पसंद करता है। वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। जब अल्लाह की तरफ इस नाम की निस्बत होगी ना कि अंत तव्वाब, अल्लाह के नामों में से एक नाम तव्वाब भी है, उसके मानी होते हैं तौबा कबूल करने वाला। और जब इंसान को तव्वाब कहा जाए तो उसका मतलब होता है तौबा और उज़र पेश करने वाला। ये फर्क हो जाते हैं। मानिए अल्फाज दोनों अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इंसान के लिए कुरान पाक में इस्तेमाल किए जाएंगे। कुल्ला बेतु मिनहा जमिया, फिर वही हुक्म दोहराया जा रहा है आयत नंबर 38 में। कुल्ला बेतु मिनहा जमिया, हमने हुक्म दिया उतर जाओ इस जन्नत से सबके सब। अब अल्लाह फिर एक हुक्म दे रहे हैं सबके सब जन्नत से उतर जाओ। पहले भी ये हुक्म आ चुका है, अब ये दूसरी दफा हुक्म आया। इसके बारे में ज्यादातर लोगों ने लिखा है पहले जो हुक्म आया था उसमें नाराजगी थी, थोड़ी सी डांट डपट थी, चलो यहाँ से निकल जाओ। और ये जो हुक्म आया है इसमें बड़ी कह सकते हैं लताफत है, इसमें बड़ा नरम अंदाज है। अल्लाह ने फरमाया कि जमीन की तरफ चले जाओ, क्योंकि तुम्हें जमीन ही के लिए बनाया गया है। जन्नत में तो तुम्हें इम्तिहान के मकसद के लिए रखा गया था, लिहाजा ये मकसद पूरा हो गया, अब तुम दुनिया की तरफ चले जाओ। लेकिन याद रखो फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत, मेरी तरफ से तुम्हारे पास जब हिदायत आएगी, हिदायत का मतलब क्या है, मेरी तरफ से कोई पैगाम आएगा, जब मेरी तरफ से कोई हुक्म आएगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने अपने पैगामात को, अपने अहकामात को पहुंचाने के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू किया। 1,24,000 से कमो बेश पैगम्बर अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजे। अल्लाह पाक ने अपनी किताबें नाजिल फरमाई, अल्लाह पाक ने अपने अहकामात नाजिल फरमाए। ये इंसान पर एक बहुत बड़ा करम है अल्लाह का। और फिर फरमाया फमन तबिअ हुदाया, जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की। अब जब मेरी तरफ से तुम्हें कोई पैगाम मिलेगा तो हिदायत आएगी, और तुम में से जो शख्स मेरे हुक्म की पैरवी करेगा, उस हिदायत को कबूल करेगा, उसके लिए 2 इनाम रखे हैं। जो अल्लाह के हुक्म को कबूल करेगा, उसकी पैरवी करेगा, उसके लिए अल्लाह फरमाते हैं कि 2 इनाम है। पहला इनाम क्या है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहला इनाम है फला खौफुन, ना तो उन्हें कोई खौफ होगा। खौफ क्या, खौफ किस चीज का होता है, किसी चीज के चले जाने का खौफ होता है, ये चीज मेरे हाथ से निकल ना जाए, मैं इससे महरूम ना हो जाऊं। अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर भी मैं तुम्हें किसी चीज से महरूम नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी हिदायत पर अमल करोगे ना, तो दुनिया में भी मैं तुम्हें किसी चीज से महरूम नहीं करूंगा। और हमारा कहना क्या है, हमारा तजर्बा क्या है, हम तो कहते हैं साहब अगर सच बोलेंगे तो सब कुछ चला जाएगा, सच बोलेंगे तो मारे जाएंगे, सच बोलेंगे तो कोई एतबार ही नहीं करेगा। अल्लाह फरमाते नहीं, अगर सच बोलोगे तो कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ हासिल हो जाएगा। और नंबर 2 वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। गमगीन हुज़्न किसको कहते हैं अरबी जबान में, हुज़्न का मतलब होता है हैज़नून, हुज़्न का मतलब होता है किसी चीज के हासिल ना होने का गम। यानी ऐसा तुम्हें कोई गम नहीं होगा कि साहब ये चीज हमें नहीं मिली, ये नेमत नहीं मिली, ये दौलत नहीं मिली। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें तमाम दौलतें अता फरमा दी जाएंगी, ना तुम्हें किसी चीज के जाने का खौफ होगा और ना किसी चीज के ना मिलने का गम होगा। गम से, खौफ से तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। एक बहुत ही मशहूर है ख्वाजा अजीज बिन हसन मजलूब, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से, उन्होंने एक जुमला लिखा है। उस जुमले में वो कहते हैं कि जनाब अगर तुम गम से बचना चाहते हो ना, दुनिया के गम से बचना चाहते हो और आखिरत के हुज़्न से बचना चाहते हो, आखिरत के हुज़्न से बचना चाहते हो, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, जो बचना हो गमों से आपका दीवाना हो जाए। यानी अगर आप दुनिया में अपने आप को गम से आजाद रखना चाहते हो, खौफ से आजाद रखना चाहते हो, तो फिर मुकम्मल तौर पर अपने आप को उस खुदा के सुपुर्द कर, मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके हवाले कर दो, अपने आप को उसका दीवाना बना दो। फिर देखो वो किस तरह तुम्हारी हिफाजत करता है, वो किस तरह तुम्हारी तमन्नाएं पूरी करता है, वो किस तरह तुम्हारे काम आता है। फरमाया अगर तुम मेरी तरफ से अता की गई हिदायत को कबूल करोगे, उस पर चलोगे,
तो दुनिया में तुम्हें खौफ से आज़ाद कर दूंगा और आखिरत में तुम्हें हर किस्म के हुक्म से आज़ाद कर दूंगा। आज हम क्यों इस परेशानी में मुब्तला हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह के अहकामात को कबूल ही नहीं किया, हमने उन पर अमल ही नहीं किया। हमने कभी सोचा नहीं है कि हमारी फलाह और कामयाबी इसी में है। हम तो समझते हैं कि हमारी कामयाबी के ज़राए वसाइल कुछ और हैं, जबकि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने बाबांग दोहल कह सकते हैं वाज़े अल्फाज में फरमा दिया कि अगर तुम गम से आज़ादी चाहते हो, अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो फिर मेरी हिदायत की पैरवी करो, मेरे अहकामात पर अमल पैरा हो। फिर देखिए दुनिया अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगी और आखिरत का सुकून और इत्मीनान भी तुम्हें नसीब हो जाएगा। इसके बाद फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। ये आयत नंबर 39। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने कुफ्र किया, व कज़्ज़बू बिआयातिना, और झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नार, तो वही दोज़खी होंगे, वो हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, व कज़्ज़बू, और झुटलाया। एक होता है किसी चीज का इनकार करना, और एक होता है किसी चीज को झुटलाना, एक होता है ना मानना, और एक ये कहना नहीं साहब नहीं, ये सच नहीं है, झूठ है, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। और अल्लाह फरमाते हैं हमारी आयात को झुटलाया। अब आयात क्या है? हमारी आमतौर पर आयात का मतलब क्या लिया जाता है? पुरानी आयात लिया जाता है। कुरान पाक में आयात का जो लफ्ज है वो मुख्तलिफ मानी के अंदर इस्तेमाल हुआ है, 3 मानी के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक के अंदर। कहीं गलत फहमी ना हो आप लोगों को, कुरान पाक पढ़ेंगे तो आयात के लफ्ज आएगा, कहीं ये ना समझना बैठना कि आयात का मतलब ये आयत है कुरान पाक की, जैसे मैं कह रहा हूँ ये आयत नंबर 39 नहीं, ये ना समझ लेना। एक तो आयात को जो मानी बताए गए हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, आयत का लफ्ज वो अलामत और निशानी के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिहिल लैल वन नहार, ये जमीन और आसमान ये सारी मेरी निशानियां हैं, ये मेरे होने की अलामत हैं, ये तुम्हें मेरा पता देते हैं। ये तो आयात अलामत और निशानी के माने के अंदर इस्तेमाल की गई है। इसी तरह आयत जो वो मौजिज़ात के माने में भी इस्तेमाल हुई है। कुरान पाक में बहुत सारी जगह पे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने अंबिया को आयात अता फरमाई और उन्होंने उन आयात को देख कर फिर भी इनकार किया। तो वहां पर आयात के मानी पुरानी आयात नहीं होती, बल्कि वहां पर मौजिज़ात होती हैं, क्योंकि पुरानी आयात तो सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई, आपको अता की गई। और अल्लाह फरमाते हैं कि हमने मूसा को भी आयात अता की। कज़्ज़ब आल फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना, कुरान पाक में है फिरौन और उसकी कौम का हाल जरा सुनो, उन्होंने क्या किया? कज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी आयात को झुठलाया। तो आयात से मुराद क्या है? अल्लाह की निशानियां और वो मौजूदात जो अल्लाह ने अपने पैगंबरों को अता फरमाया। तो आयात का एक मतलब अलामत और निशानी, दूसरा मतलब मौजूदा जो पैगंबरों को अता किया गया, और तीसरा मतलब कुरान मजीद के ये जो फिक्रे हैं, ये जो आयात हैं, ये जो जुमले हैं जहाँ गोल दायरा बना होता है एक आयत से दूसरी आयत, इनको भी आयात कहा जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर इन तीनों चीजों को आप ले सकते हैं, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नार, तो वो दोज़खी होंगे, और दोज़ख में कोई एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं रहेंगे, वहुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है और उसके बारे में जो तफसीलात हैं वो मुकम्मल की हैं, और खुलासा ये कि ये जो आयत नंबर 39 तक हमने पढ़ा है, उसमें 3 सबसे बड़ी चीजें आई हैं, सबसे बड़ी 3 चीजें आई हैं। सबसे पहले तो कुरान पाक की हक़ानियत को वाज़ेह किया गया है। उसके बाद अल्लाह पाक ने इंसानों के 3 गिरोहों का जिक्र फरमाया है, यानी कुफ़ार का, मुनाफिकीन का और मोमिनीन का। पहले नंबर पर मोमिनीन का, फिर कुफ़ार का और फिर मुनाफिकीन का, इनका खिताब किया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने वहदानियत के और उलूहियत के तौहीद के दलाइल बयान फरमाए हैं, और उसी ज़िम्न के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या और किस्सा भी तफसील के साथ बयान कर दिया गया है। जी मैं इस पे दौर से सवाल किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर थे, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि मैं हिदायत भेजूंगा। इससे क्या मतलब कि फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में भी अल्लाह पाक पैगंबर भेजेगा, इसकी निशानदही कर दी गई। तो आने वाले पैगंबरों की निशानदही इस आयत के हवाले से कर दी गई। पढ़ने से पहले मैं खुद भी, मेरा अपना मिजाज है कि मैं कुछ बताने से पहले तहकीक कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से 2 चीजें मुझे हदीस के हवाले से, पुरानी आयात के हवाले से सही साबित होती है। मैं नहीं समझता, ये नहीं कि मैं जिनको समझता हूँ, जो सही साबित होती है वो सिलेक्टेड चीजें मैं लेता हूँ और आपके सामने बयान करता हूँ।
اور हमारे फिरके बनने की वजह भी यही है कि हमने गैर मुस्तरद चीजों के पीछे ज्यादा मेहनत की है, काबिज की है, और जो हकीकतें हैं उनको हमने झुटलाया है और हकाइक को नजरअंदाज किया है। तो लिहाजा वो चीजें ली जाएं जिन पर सब उलमा का इत्तेफाक है, तमाम तफासिर में जो चीजें मिलती हैं और कुरान और हदीस के मिजाज के मुवाफिक हैं। क्योंकि इसराइली रिवायात बहुत सारी आई हैं, हमारे मुसलमानों ने भी इसराइली रिवायात बयान की है। ये एक ऐसा दौर गुजरा है जिस दौर के अंदर बहुत तबाही आई है और दीन के अंदर बहुत ज्यादा मिलावट की कोशिश की गई है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का बहुत बड़ा एहसान है कि जिन्होंने ये खिदमत अंजाम दी, उन चीजों को अलग करके रख दिया और मुस्तनद चीजों को अलग करके रख दिया। हजरत हव्वा के बारे में ये जरूर है कि जनाब सबसे पहले हजरत हव्वा ने उस फल को खाया था और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि आ जाओ तुम भी खा लो, तो इस तरह दोनों ने खा लिया, लेकिन कुरान पाक में इसका इशारा नहीं है। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि तफसीर अजीजी से ये रिवायत उन्होंने ली है इस किताब बारे में, करम शाह साहब ने ये आयत उनसे ली है। लेकिन ये ना कि मैं कह रहा हूँ इस हदीस का जो माखज है, जो बुनियाद है, वो क्या है, उसके अंदर जो लिखी वो लिखो है हाकिम से ली है, वैसी से लिए या हाकिम से ली है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि ये हदीस गलत है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस बात पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है वो आयत है। बाद लोगों ने इसको भी बयान किया है, लेकिन इसके बारे में कुछ लोगों ने कलाम किया कि मुस्नद नहीं है। अब देखिए इसमें एक दो पहलू सोचते हैं, चलें आपने बात कह दी तो इसके तरह मैं बात करें। दो चीजें होती हैं, एक चीज, एक आदमी ये समझता है कि इससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इजाफा होता है, आपकी मोहब्बत और अकीदत ऐसी रिवायात से बढ़ती है, इसलिए ऐसी रिवायात को बयान किया जाता है। अब इसमें एक जुमला है छोटा सा, उसमें ये लिखा हुआ है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये भी कहा गया कि अगर वो ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। ये तो जलसी नहीं हो रही है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अगर मैं आपसे कह दूं ठीक है मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन वो ना होता तो मैं तुम्हें भी ना छोड़ता, तो आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मकाम है, मेरी क्या हैसियत है बैन आदिम रसूल। तो लिहाजा नानु फरीक बैन आदिम रसूल की आयत में जिम्मा गुजारी है कि हम किसी रसूलों में तफरीक नहीं करते, तो लिहाजा ऐसी रिवायत का इनकार नहीं करते। हमारे पैगंबर की शान बाद खुदा तू ही मुख्तसर, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर, इस आलम के अंदर सबसे बड़ा जो रुतबा, जो हैसियत, जो शान अता की है वो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। आपसे ज्यादा शान वाली शख्सियत और हस्ती तो कोई आ ही नहीं सकती, ठीक है। और तमाम पैगंबरों के सरदार, तमाम पैगंबरों से अफजल। आपने ये भी फरमाया कि जितने उलूम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम पैगंबरों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए, वो सारे उलूम और इसके अलावा भी मुझे अता किया गया। लेकिन इसके मुकाबले में जैसे बाद लोगों ने ये कहा दिया कि जनाब आप तो यानी कि हर चीज के बारे में आप जानते हैं, हर चीज के बारे में। एक तो हर चीज मेरी निगाह के अंदर है, मैं अगर बहुत कम जानता हूँ, आप बहुत कुछ ज्यादा जानती हैं, मैं तो बोलूँगा भाई आप तो बहुत कुछ जानती हैं, आप तो हर चीज जानती हैं। ये इस माने में सही है, लेकिन इस माने में अगर आप लिया जाए कि जी हर चीज जानते हैं, हर चीज के इल्म तो अल्लाह के पास है, वह भी कुल्ले शैइन अलीम, अल्लाह ने अपने नाम के साथ फरमाया कि मैं हर चीज के बारे में। जब बात आती है ना अकायद की, इस्लाम की, दीन की, ईमान की, तो उसमें वो बात कही जाए जो बात मुस्तनद होनी चाहिए और जिससे किसी को भी इख्तिलाफ करने का या किसी को भी उंगली उठाने का मौका न। ये वजाहत मैंने कहा मेरे सामने समझ आ गई। तो अगली आयत में थोड़ी सी पढ़ दूं, शुरू कर दूं ताकि ये रब्त रहे। या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। ऐ औलाद याकूब, यहाँ जो तर्जमा किया इन्होंने ऐ औलाद याकूब, और ये तर्जमा जो है मतलब और मफहूम के लिहाज से, क्योंकि आप देखेंगे ज्यादा तफासिर में लिखा है ऐ बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल। असल में बनी इसराइल जो है, मैं गालिबन पहले भी इसकी वजाहत कर चुका, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। आप अगर तारीख देखेंगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो हजरत इसहाक की औलाद में से जो पैगंबरों का सिलसिला है उसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी हैं, उनसे जो सिलसिला चलता है उसको बनी इसराइल कहा जाता है। और ये बनी हजरत याकूब का इब्रानी जबान में जो नाम था वो इसराइल भी था, और मैं वजाहत कर चुका पहले भी कि इसराइल के मानी होती है अल्लाह का बंदा उस जबान में, तो लिहाजा इस हिसाब से उनको इसराइल और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा गया। या बनी इसराइल इसलिए कहा गया ऐ औलाद याकूब, याद करो, उज़कुरू याद करो, निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरा वो एहसान जो किया मैंने तुम पर, व औफू बिअहदी, और पूरा करो तुम मेरे साथ किए हुए वादा को,
ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे साथ किए हुए वादा को, वइय्याय फरहबून, और सिर्फ मुझी से डरा करो। ये आयत नंबर 40 है। ये अब इसमें देखिए, यहाँ से मैं टॉपिक क्योंकि बदला है, मौजू बदला है, रूए सुखन जो है वो बनी इसराइल की तरफ दिया है, उसकी वजह बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। उसकी वजह ये कि ये जो सूरत हम पढ़ रहे हैं ना, सूरह बकरा, ये मदनी सूरह है ये, और मदीने के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखातिबीन थे, यानी जिनसे आप मुखातब थे या जिनको आप दीन का पैगाम पहुंचा रहे थे, उनमें बहुत सारे लोग वो भी थे कि जो यहूदी थे, यहूदियत से ताल्लुक रखते थे, हम जिनको बनी इसराइल कहते हैं। और यहूदी जो थे वो मदीने के अंदर समझ लीजिए कि गालिब अक्सरियत में थे, हर तरह से छाए हुए थे, इल्मी लिहाज से भी, दौलत के लिहाज से भी, और शराफत के लिहाज से भी, दियानत के लिहाज से भी। वो क्योंकि अरब के जो लोग थे वो तो बहुत ही पिसे हुए लोग थे, ज्यादातर काश्तकारी करते थे, ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे अरब के लोग, और तो हजरत के लोग। ये जो बनी इसराइल के लोग थे, जो यहूदी थे, ये इल्म भी रखते थे, अल्लाह को भी मानते थे, रसूलों को भी मानते थे, क़यामत को भी मानते थे, कब्र को भी मानते थे, हश्र को भी मानते थे। ये और बात है कि उनके तसव्वुरात इनके बारे में सही नहीं थे, लेकिन मानने का दावा जरूर करते थे। क्योंकि आपके सामने ये लोग थे, तो कुरान पाक के अंदर खास तौर पर इन लोगों को दावत इस्लाम दी गई है। वजह यह है कि एक अगर पढ़ा लिखा आदमी किसी की बात को समझता है, तो अनपढ़ आदमी पहले ही कहता है कि जब यार ये पढ़ा लिखा आदमी समझ रहा है, तो मैं क्यों ना इसकी बात मानूं, मैं भी इसकी बात मान लूं। तो फरमाया गया, इन यहूदियों से खिताब किया गया, इनको वो नेमतें याद दिलाई गई, वो एहसानात याद दिलाए गए जो अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर किए थे। हो सकता है कि इनमें से लोग मुसलमान हो जाएं, मोमिन हो जाएं, और उनमें से जब लोग मोमिन हो जाएंगे तो फिर दूसरे लोगों के लिए इस्लाम लाना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या इलाही आलमीन, जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, इसको अपने दरबार में मकबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हम सबको कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही आलमीन, तमाम हमारे जायज मसाइल को हल फरमा। या इलाही आलमीन, कुरान पाक को पढ़ना और समझना हम सबके लिए आसान फरमा। या इलाही आलमीन, दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह हमारी औलाद को, हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को फरमाबरदार और नेक बनने की तौफीक अता फरमा। या इलाही आलमीन, जितने मुसलमान हजरात, जितने लोग बीमार हैं, सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह सेहत व आफियत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको हर किस्म की ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों से, अमराज से, नकाइज से महफूज व मामून फरमा। या इलाही आलमीन, जो हजरात तुझ तक पहुंच चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों को राहत देने का कुशादा फरमा। या इलाही आलमीन, उन पर अपनी खास रहमत नाज़िल फरमा। या इलाही आलमीन, हमें भी उनके साथ क़यामत के दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या इलाही आलमीन, हम सबको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का साया नसीब फरमा। या इलाही आलमीन, हम सबको क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा। या इलाही आलमीन, जो लोग हज के लिए गए थे, हज कर चुके, या अल्लाह उनको अमन सलाम की नसीब फरमा। या अल्लाह उनके हज को कबूल मकबूल फरमा। या इलाही आलमीन, हमें भी जिंदगी में अपने घर और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूल ज़ियारत नसीब फरमा। या इलाही आलमीन, हम सबको दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमा। या इलाही आलमीन, हमारे घरों में बरकत नसीब फरमा, कारोबार में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा। या इलाही आलमीन, हर किस्म की नजर बद से महफूज फरमा, हर किस्म के बुरे असरात से महफूज फरमा, सेहर और जिन्नात के असरात से महफूज फरमा। या इलाही आलमीन, जादू के असरात से महफूज फरमा, दिली और ज़हनी इत्मीनान और सुकून अता फरमा। या इलाही आलमीन, बाजमात 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान पाक की तिलावत की तौफीक अता फरमा। या इलाही आलमीन, ज़्यादा से कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या इलाही आलमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा। या इलाही आलमीन, हमारे हुक्मरानों को इस मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको इस्लामी कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो कुछ हमारी दिली ख्वाहिशें और तमन्नाएं हैं, सबको तू जानता है, सबको अपनी रहमत से पूरा फरमा। या अल्लाह, हमारी दुआओं को और आमीन को अपने दरबार की हाजिरी को मकबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, आमीन बिरहमतिका या